Hello everyone, welcome back to your channel. I hope all of you are doing good. And now I am here with one more video. This is continuation part of cell structure and functions. So if you are new on my channel, please subscribe to this YouTube channel and don't forget to press bell icon and do like, share, comment and subscribe to your YouTube channel, which is Ankush channel. Okay, so how is the life going on? सब बढ़िया. पिछले पार्ट में मैंने आपको कंटिन्यूएशन चल रहा था हमारा प्लास्टिड्स का, एंड वी कवर्ड दैट व्हाट डू वी मीन बाय सेमी परमिएबल selectively permeable membranes. Okay, so we looked at that plastids is a double membranous cell organelle. Outer membrane semi permeable, inner membrane is selectively permeable. Okay, so outer membrane is nothing but semi permeable, inner membrane is selectively permeable. On stroma of plastids, membrane bound coin like structures, ये important point है, coin like structures are present which are called as thylakoid. सो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? सपोज कीजिए प्लास्टिड है, दिस इज ए प्लास्टिड. सो प्लास्टिड के अंदर बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड. ठीक है, और जब थाइलाकॉइड ग्रुप्स में आ जाते हैं, यानी कि देखिए ये एक थाइलाकॉइड, 2 3 4 5, तो जब थाइलाकॉइड ग्रुप्स में आ जाते हैं तो थाइलाकॉइड के ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेना. व्हाट डू वी कॉल? ग्रेना और ग्रेना. सो यही दो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं. ऑन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स मेम्ब्रेन बाउंड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एज थाइलाकॉइड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स इज called grana or is called as grana. I hope you are clear. Okay, now we are going to study with the third point, and this is plastids are of 3 types. अब कोई चीज़ है जिसकी क्लासिफिकेशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता बायोलॉजी में. सो प्लास्टिड्स की भी क्लासिफिकेशन होती हैं. प्लास्टिड 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं. फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, second is chromoplast, and third is leucoplast. So chloro, chlomo and leuco. ना इसमें एक चीज़ कॉमन है सब में, प्लास्ट. सो प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड्स. ओके, सो प्लास्ट का मतलब क्या होता है? प्लास्टिड. सो हियर वी गो, नाउ वी कैन स्टार्ट. सो आई हैव मेड ए टेबुलर form of all the types of plastid. This is chloroplast, okay, this is chromoplast, and this is leucoplast. So we will look one by one, and as you all know, chloroplast is in your syllabus only. It is in your syllabus, but I have given this to additional knowledge for you, but you should know this one also. But chloroplast is very important because it is in your syllabus. So first of all, let's start with chloroplast. They are green colored due to the presence of chlorophyll. All of you know chlorophyll. It is a pigment which makes the color of leaves or the plants green. Okay, so it makes the color of the plants and leaves green. So this is chlorophyll. Now they are colored plastids. What are they? They are of different colors except green. They are of different colors except green. So, and they are colorless. It means they have no color at all in them. Okay, so leucoplasts are colorless. It means that they have no color. Chromoplasts are not green colored plastids, they are colored plastids. It means that they have all the colors. They can red, pink, orange. So these colors, so many colors are there, but not green. And chloroplast, they are green colored plastids.
Now what do you might be wondering that what makes the color, okay, what makes them green? So chloroplast is green colored due to the presence of a substance called chlorophyll. Okay, it is a green pigment which makes the color of the plant cell or chloroplast or plastids or leaf or the plant green. So first point is clear, I hope all of you. Second point, chloroplast. Now we will just look at their names, that what do we mean by writing this chloro. So we can divide them in two parts, chloro and plast. Chloro means green and plast mean plastids. So you know why we have the scientists have taken that name chloroplast, because chloro means green. Okay, so chloro means green and plast mean plastids. That's why they have given the name chloroplast. Now this is chromoplast. Again, it is made up of two words, chromo and plast. Chromo means colored and plast means plastids. Okay, so scientists have decided something. That's why they have given that name chromoplast. Okay, same with chloroplast. Chloro means green, plast means plastic. Same here, chromo means colored and plast means plastids. Now we look at leucoplast. Leuco means colorless and plast means plastids. So colorless plastids are called leucoplast. Now these chloroplast, chromoplast and leucoplast, green plastids, colored plastids and colorless plastids, are a famous one marker question in your exams. Okay, so many questions, one marker questions come in your exams based on these topics, that colorless plastids, leucoplast, colored plastids, chromoplast, chloroplast, green colored plastids. So learn all of these names. Now we are going to move on our third point. It is basically based on their function, that what function do each of them perform. So preparation of food is the main function of chloroplast. Now we will see briefly in our next part, or after I will complete chloroplast, chromoplast and leucoplast, that how food is prepared in chloroplast. So just for time being, you should know that what is the function of chloroplast. Preparation of food is the function of chloroplast. Chromoplast, it has two functions, first and then the second one. Provide color to plant parts to make them look attractive. Now chromoplast are colored plastids. You know some plant parts like that, the fruits and the flowers, they are colored na. So they are colored only because of this pigment, which is chromoplast. Now you might be wondering that why plant parts need to be colored. Only some parts. You know what is the reproductive part? What is the reproductive part? Okay, so it is nothing but the flower. In flower it has stamen and carpel or pistil, whatever you can say. So these parts and you know what is pollination also? Movement, pollen grains move from one place to another. So insects also play a very important role in playing the pollination process. यानी insects का भी एक बहुत important role होता है pollination में. इसीलिए अगर insects कब attract होंगे, जो प्लांट्स या जो फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होंगे उन्हीं की तरफ तो इंसेक्ट ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे. तो इसीलिए क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है नेचर की तरफ से, जिससे कि प्लांट पार्ट्स अट्रैक्टिव दिखें और इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन प्रोसेस हो पाए. ओके, देन लास्ट वन, ल्यूकोप्लास्ट. Leucoplast is it is colorless plastid, so it is mainly meant for storage purpose of plastids. Okay, ये सामान स्टोर करने में काम आता है. तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं क्लोरोप्लास्ट से. ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस 5 मार्कर क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम्स में आता है. तो उसके लिए हमें 5 पॉइंट्स लिखने होंगे एग्ज़ाम के लिए. तो मैं आपको वही 5 पॉइंट्स के फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके एग्ज़ाम्स की मटेरियल भी मिल जाएगा आपको क्या नोट करना है. ओके, एग्ज़ाम्स में. सो फर्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स ड्यू टू द presence of green
कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी पिछले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होती हैं। ग्रीन कलर्ड क्यों होती हैं? क्योंकि एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल क्या ट्रैप करता है? लाइट एनर्जी। मैं आपको समझाऊंगा अभी अच्छे से। विद द हेल्प ऑफ क्वांटासोम्स। ओके, सो क्वांटासोम्स जैसे कि सोम्स मतलब बॉडी, लाइकवाइज दिस। मैं आपको बेस समझाता हूँ। जैसे कि अगर किसी के वर्ड के एंड में SOMES आता है, सोम्स मतलब बॉडी। जैसे कि ऑक्सीसोम्स, शायद आपने ऑक्सीसोम ना सुना हो। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, सोम्स मतलब बॉडी, यानी ऑक्सीजन को ट्रैप करने वाली बॉडी। लाइजोसोम्स, तो लाइजो मतलब टू ब्रेक एंड सोम मतलब बॉडी। तो सोम मतलब बेसिकली बॉडी। सो क्वांटा को ट्रैप करने वाली बॉडी। अब आपको क्वांटा समझ में नहीं आया होगा क्वांटा क्या होता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आगे समझाऊंगा। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। सो यू कैन सी दिस इज ए प्लांट, and this is sun. So I have basically made the scenario of photosynthesis, that how does photosynthesis occurs. So this is a leaf, and you know everything is made up of small particles, likewise this, suppose this particle. So leaf is also made up of small particles, and leaf has small cells. Now each cell have plastids. Let me show this. This is a leaf. Okay, leaf is made up of cells. Cells have plastids. It means that they have chloroplast, and chloroplast are there. It means chlorophyll would also be there, because chloroplast are existing because of chlorophyll. So what I want to say, that can I denote these that each leaf has also chlorophyll? हर एक लीफ के अंदर क्लोरोफिल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लीफ सेल से मिलकर बनी है। सेल प्लास्टिड से, सेल के अंदर प्लास्टिड्स होगी। प्लास्टिड है तो क्लोरोप्लास्ट है, और अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल होगा ही होगा। सो मैंने यही बताया है। ये स्मॉल पार्टिकल्स कुछ नहीं है, दे आर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्या है ये? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ये जितने भी स्मॉल डॉट्स हैं, गोले हैं, ये सब क्या हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। अब एक और चीज़, सबको लगता है कि लाइट एक रे की फॉर्म में आती है। ओके, बट लाइट एक्चुअली रे की फॉर्म में नहीं आती। लाइट आती है पैकेट्स की फॉर्म में। फ्रेंड्स समझ रहे हैं ना आप? लाइट पैकेट्स की फॉर्म में आती है, लाइकवाइज दिस। बट अब आप कहेंगे कि हमें तो वो रे की फॉर्म में आती हुई दिखती है। ऑब्वियसली आपको रे की फॉर्म में आती होगी, बिकॉज व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ ए वेरी फास्ट स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट की इतनी तेज़ स्पीड है, तो ऑब्वियसली वो हमें एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, लाइकवाइज दिस पार्टिकल्स हैं लाइट के, वो हमें दिखते नहीं हैं। वो एक रे की फॉर्म में आती हुई दिखती है हमें, बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। सो एक्चुअली में लाइट एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा एंड फोटॉन्स। ओके, सो इन एक स्मॉल पैकेट्स को हम क्या बोल रहे हैं? क्वांटा, या फिर व्हाट डू वी कॉल? फोटॉन्स। सो क्लोरोफिल, अब कॉन्सेप्ट समझिएगा बहुत ध्यान से। क्लोरोफिल के जो 250 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स? क्लोरोफिल के 250 मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी के एक पैकेट को ट्रैप करते हैं, यानी कि एक क्वांटा या एक फोटॉन को ट्रैप कर रहे हैं। सो क्लोरोफिल के उन 250 मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं क्वांटासोम्स। समझ में आया आपको? एक बार मैं रिपीट करता हूँ। लीफ ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट की एक एनर्जी पैकेट को ट्रैप करते हैं, और लाइट कभी भी रे फॉर्म में हमें दिखती आती है रे फॉर्म में, बट एक्चुअली वो रे फॉर्म में नहीं आती, वो पैकेट्स की फॉर्म में आती है। तो लाइट एनर्जी के उस पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटा। तो क्लोरोफिल के 250 मॉलिक्यूल्स उस लाइट एनर्जी के एक पैकेट को ट्रैप करते हैं, और उन्हीं 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं क्वांटासोम्स। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्यों ट्रैप करते हैं? बिकॉज सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट्स
टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो क्वांटासोम्स आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वही सिंथेसाइज करके लिख दिया है। क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्वांटासोम्स group of 250 chlorophyll molecules and helps in photosynthesis. Photosynthesis, food formation takes place in the chloroplast. That is why chloroplast is known as the kitchen of the cell. अब जितनी भी चीज़ें हैं, क्लोरोप्लास्ट ही सन को ट्रैप कर रहा है। सो जितना भी फूड फॉर्मेशन हो रहा है वो सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल से मिलकर बना है। क्लोरोफिल ही सनलाइट को ट्रैप कर रहा है। तो जितना भी फूड फॉर्मेशन हो रहा है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट को हम एक एब्रीविएशन के नाम से जानते हैं जो कि है किचन ऑफ द सेल। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। CO2 आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। CO2 और वाटर आर द रॉ मटीरियल्स। व्हाट आर दे? दे आर द रॉ मटीरियल्स। CO2 एंड H2O आर द रॉ मटीरियल्स, यानी कि CO2 कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? एनवायरनमेंट से, और वाटर सॉइल से। So CO2 और H2 आर रॉ मटीरियल्स विच आर टेकन बाय द प्लांट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब उन प्लांट्स को उन न्यूट्रिएंट्स को या रॉ मटीरियल्स को सिंथेसाइज करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की और क्लोरोफिल की। अब आपको पता है क्लोरोफिल कहाँ से कैसे ट्रैप करता है क्लोरोफिल सनलाइट को? इस प्रोसेस के ज़रिए। समझ में आ गया? तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्लोरोफिल क्या चीज़ ट्रैप करेगा? कुछ भी ट्रैप नहीं कर पाएगा, तो क्लोरोफिल का बिल्कुल यूज़ बेकार हो चला जाएगा। और अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा? तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोसेस के लिए। और जब इन दोनों की प्रेजेंस में जब इन दोनों का फंक्शन सिंथेसाइजेशन हो जाता है, उस प्रोसेस के दौरान जो वो प्रोडक्ट जो रिलीज़ होता है ग्लूकोज, जो कि फूड ऑफ द प्लांट होता है C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है एज ए बाय प्रोडक्ट एंड विच वी इनहेल। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं ना, सो वो बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज़ होती है। सो इस प्रोसेस को हम ऐसे पढ़ना कैसे? CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll we get C6H12O6 plus O2 is called photosynthesis। इसी को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस, ये रब हो गया है, प्रेजेंस है P, ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन O2 एज ए बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट यानी कि किसी प्रोडक्ट के साथ रिलीज होने वाला साथ में, इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट, इज नोन एज नथिंग बट फोटोसिंथेसिस। सो आई होप आपको क्लोरोप्लास्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है फूड फॉर्मेशन के अंदर वो समझ में आ गया होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल कवर vacuoles which is on next cell organelle which is in a syllabus, and we will cover nucleus also. So I will meet you in the next part of the video. तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।